Hello, am I audible? Yes, ma'am. Okay, just let me ask Surbhi ma'am to make me host. Just give me a minute. Okay. Meanwhile, हमने बॉटम अप पार्सर पढ़ा था. What was bottom up parser? Bottom up parser क्या था guys? Anyone remembers? What is a bottom up parser? Hmm? LL1 part. नहीं, LL वो तो टॉप डाउन था. Whatever parser we have studied till now, it was a top down parser. चलो अपना नोट्स देखो, हमने लास्ट टाइम बॉटम अप पार्सर लिखा था. देखो व्हाट इज अ बॉटम अप पार्सर. नो मैम, अभी बाकी है वो करवाना। क्या? अभी बाकी है बॉटम अप अभी बाकी है। नहीं, बट मैंने जब ग्रामर के दो टाइप्स बताए थे कि एक टॉप डाउन होता है, एक बॉटम अप होता है. मैंने बॉटम अप का डेफिनेशन आपको बताया था कि क्या होता है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टॉप डाउन एंड बॉटम अप. आई क्लियरली रिमेम्बर व्हाट आई हैव लाइक टॉट यू गाइस. क्या था? वो टॉप. स्ट्रिंग से सिंबल तक जाता है। राइट. सॉरी, वापस बोलना एक बार. टेल टेल. स्ट्रिंग से स्टार्टिंग सिंबल तक जाता है। Correct. That is nothing but your bottom up parser. Top down is like when we start from starting symbol and moves towards the string. That is nothing but your top to down parser. What is a bottom up parser? Bottom up parser is the one where you start from a string and you moves towards the starting symbol. Are we clear with this? Are we clear with this? Hmm? यस मैम। ठीक है. I don't know कहाँ पे है सुरभि. Okay. She said okay. Okay. ठीक है. सो लिखो बॉटम अप पार्सर का डेफिनेशन लिखो. हेडिंग डालो बॉटम अप पार्सर. हेडिंग डालो बॉटम अप पार्सर. लिखो. when we move when we move from string towards the starting symbol. When we move from string towards the starting symbol, this is achieved by this is achieved by bottom up parser. दिस इज अचीव्ड बाय बॉटम अप पार्सर. क्या अचीव होता है बॉटम अप पार्सर से? जब आप स्ट्रिंग से स्टार्टिंग सिंबल की तरफ जाते हो वो होता है बॉटम अप. वही जब आप स्टार्टिंग सिंबल से स्ट्रिंग की तरफ आते हो वो होता है आपका टॉप टू डाउन. आर वी क्लियर ऑन दिस? आर वी क्लियर ऑन दिस? हम्म. यस मैम। ठीक है. आई डोंट नो वेयर इज शी. I'm just waiting for Survi ma'am to make me host so that we can like I can present my screen. Okay, anyways. लिखो bottom up parser. There are four types of bottom up parser. लिखो, there are four type of bottom up parser. First is first is LR0. First is LR0. Okay, let me tell you how to write this LR0 क्योंकि आप लोग सब लोग second year students हो. This one LR0. ठीक है. This is your first bottom up parser. Second is second is SLR1. Okay, she came and she made me host. Fine. ठीक है. And now let me like reshare my screen. Okay, this is how you have to write. Okay. Just let me know if you can see my screen. मैंने image open up कर दिया. Fine. अच्छा या. सब लोग लिखो. There are four type of a bottom up parser. First is LR0, second is SLR1, third is LLR1, fourth is CLR, and fifth is operator precedence parser. Write this. There are four type of bottom up parser. There are four type of bottom up parser. First is LR0, second is SLR1, third is LLR1, fourth is CLR1, fifth is operator precedence parser.
आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? हेलो? Hey guys, why are you leaving and rejoining back and back? मैम नेटवर्क प्रॉब्लम है आज। Okay. चलो लिखो, there are five types of bottom up parser. First is LR0, second is SLR1, third is CLR1, fourth is LLR1, fifth is operator precedence parser. लिखो, there are five types of bottom up parser. We will today study what is LR0. When you are done, just let me know, okay? डन मैम। Tulsi, what about you? डन मैम। Done? ठीक है, चलो। लास्ट टाइम हमने LL1 में वी स्टडी टू प्रिंसिपल। वो कौन से दो प्रिंसिपल थे बच्चा लोग? हमने LL1 में क्या देखा था, क्या हम निकालते हैं? फर्स्ट एंड फॉलो। गुड, फर्स्ट एंड फॉलो। यहाँ पे भी हम फर्स्ट एंड फॉलो का यूज करेंगे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर थ्री न्यू थिंग्स दैट विल कम while solving any bottom up parser. First है, there is something called as a augmented grammar. Augmented grammar. Then second is something called as a shift, and third is something called as a reduce. और of course आपका फर्स्ट एंड फॉलो काम आएगा ही आएगा, ठीक है? Now let us see. Now let us see. First bottom up parser, that will be the agenda for the today lecture, and that is nothing but your LR0. ठीक है? सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं, मैम इसको LR0 क्यों बोला गया? फर्स्ट एल का मतलब क्या होता है कि हम लोग क्या करेंगे, इनपुट को रीड करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है? आर के बाद हम क्या रीड करेंगे, रिवर्स, रिवर्स राइट मोस्ट डेरिवेशन, लेकिन इन रिवर्स डायरेक्शन। एंड जीरो मतलब क्या? जीरो मतलब क्या कि कितना नंबर ऑफ लुक अहेड सिंबल वी कैन सी। अब तुम लोग को याद है मैंने पार्सर क्या बोला था? पार्सर हमेशा एट अ टाइम सिर्फ एक ही सिंबल देख सकता है। लुक अहेड मतलब क्या? अगर मैं बी पे खड़ी हूं तो क्या मैं आगे सी देख सकती हूँ? अगर मैं देख सकती हूँ तो कितना आएगा, वन। लुक अहेड वन मतलब क्या, मैं आगे एक सिंबल देख सकती हूँ। लेट्स से अगर मैं डी देख सकती हूँ, डी तक देख सकती हूँ, तो दैट मीन्स मेरा लुक अहेड कितना हो जाएगा, टू। सो लुक अहेड आपको मतलब क्या बोलता है कि आप जो भी करंट पोजीशन पे हो उससे आगे हाउ मेनी मोर सिंबल्स दैट यू कैन सी, दैट इज नथिंग बट zero. Zero stands for you, okay? So zero stands for the number of look ahead symbol that you can see, that you can see. तो let's say कि मैं C पे खड़ी हूँ तो मैं आगे जीरो सिंबल मतलब मैं आगे कुछ भी नहीं देख सकती। अगर ये वन होता तो मैं आगे क्या करती थी, सी के आगे एक सिंबल देख सकती थी, डी। डी अगर ये दो होता तो मैं आगे देख सकती थी डी ई, लेट्स अज्यूम यहाँ पे ई होता। अगर तीन होता तो डी ई एफ तक देख सकती थी। आर वी क्लियर विद दिस डेफिनेशन व्हाट इज अ लुक अहेड? लुक यस अहेड का मैम। कॉन्सेप्ट समझा पार्सर में, ठीक है? यस मैम। तो एल का मतलब क्या है कि लेफ्ट टू राइट करना है। आर का मतलब क्या है, हम हमेशा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन करते हैं, ये बोलता है राइट मोस्ट डेरिवेशन करो। और जीरो मतलब क्या, कितना आगे आप सिंबल देख सकते हो, दैट इज नथिंग बट योर लुक अहेड। तो अगर हम देखने को जाएंगे, इफ वी गो बैक टू द डायग्राम, तो ये वन का मतलब ये सब कुछ सेम हो गया। अभी ये वन का मतलब ये आगे एक सिंबल देख सकता है, ये भी आगे एक सिंबल देख सकता है, ये भी आगे एक सिंबल देख सकता है, ये आगे नहीं देख सकता। तो ये सबसे वीकेस्ट होगा। आर वी क्लियर विद दिस फैक्ट? आर वी क्लियर विद दिस फैक्ट? ठीक है।
अब सिंटैक्स, ये हम जो भी पढ़ रहे हैं, कौन सा चैप्टर है? सिंटैक्स एनालिसिस। व्हाट डू वी मीन बाय सिंटैक्स एनालिसिस गाइस? सिंटैक्स एनालिसिस क्या करता है? ये पूरे चैप्टर का काम सिंटेक्स क्या है चेक बेसिकली? हाँ, करना, सॉरी, चेक द सिंटेक्स। टू चेक द सिंटैक्स, करेक्ट। अब सिंटैक्स एनालिसिस में हमेशा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो ऐसा इनपुट रहता है, और दूसरा क्या रहता है ऐसा इनपुट? दो चीज मैंने आपको लिखवाया था, पार्सर में दो चीज इनपुट जाती है। एक तो जाता है आपका जो कोडिंग स्टेटमेंट है वो जाता है, क्योंकि हम उसका सिंटैक्स चेक करेंगे। और दूसरा चीज क्या जाता था ऐसा इनपुट? हम्म, क्या जाता था? गाइस रिवाइज करके आओ यार तुम लोग, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर को रिवीजन करके आने का। क्या जाता है दूसरा इनपुट? ये भी लिखवाया था मैंने। क्या था? ग्रामर। समझा? क्या इनपुट जाता है? ग्रामर जाता है, प्लस तुम्हारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जाएगा या कोड जाएगा। उसी का ही तो सिंटैक्स चेक करोगे ना। समझा? आर बी क्लियर? यस मैम। ठीक है। अब लेट्स एज्यूम कर लो, अब मैं अभी आपको सिखाने जा रही हूँ व्हाट इज ऑगमेंटेड ग्रामर, व्हाट इज शिफ्ट, एंड व्हाट इज रेड्यूस। शिफ्ट एंड रेड्यूस मैं बाद में सिखाऊंगी। अभी के लिए फिलहाल मैं सिखा रही हूँ ऑगमेंटेड ग्रामर। लेट्स से मेरे पास है एस टेंस टू ए, ए, और लेट्स से ए टेंस टू बी। करेक्ट है? ये ग्रामर सही है बच्चा लोग? क्या ये ग्रामर सही है? यस। हाँ। अब इसको ऑगमेंटेड ग्रामर बनाना है, ऑगमेंटेड ग्रामर बनाना है, तो वी विल ऐड वन मोर प्रोडक्शन। व्हाट इज दैट प्रोडक्शन? एस डैश टेंस टू डॉट एस। हमेशा ये प्रोडक्शन आप डालोगे अगर कोई भी ग्रामर को ऑगमेंटेड बनाना है। अब क्या होएगा? अब पहले समझो, एस डैश इज अनदर न्यू नॉन टर्मिनल, दैट इज फाइन। मैम बाय दिस डॉट, डॉट का मतलब क्या? डॉट से पहले जो भी कुछ है पार्सर ने उसको रीड कर लिया है, और डॉट के बाद क्या जो पार्सर रीड करना चाहता है। तो लेट्स से यहाँ पे अगर मैंने ऐसा लिखा होता, एस टेंस टू ए डॉट ए, इसका मतलब क्या होगा देन? कैन एनीवन टेल मी व्हाट वी मेंट बाय दिस? इसका मतलब क्या होगा? पार्सर पार्सर स्मॉल ए को ही देगा। क्या क्या क्या? प्लीज बी लाउड कैपिटल एंड ए क्लियर। को, हम्म। पार्सर कैपिटल ए को देख चुका है और स्मॉल ए को ही देखेगा। स्मॉल ए को देखने वाला है, स्मॉल ए को देखने वाला है, या डॉट के आगे जो भी कुछ रहेगा उन सबको वो देखने वाला है, बट डॉट के पहले जो भी है वो देख चुका है। आर वी क्लियर विद दिस? आर वी क्लियर विद दिस? अक्षिता, यस तुलसी, मैम। ठीक है। तो तुमने पहले क्या किया? एस डैश डॉट एस बोला, मतलब तुमने इन शॉर्ट क्या बोला है कि भाई अभी एस को भी उसने नहीं देखा है। एस को नहीं देखा है मतलब एस से आने वाले सारी चीजों को भी नहीं देखा रहेगा, राइट? तो एस नहीं देखा है तो एस से आने वाले कोई भी चीज को भी उसने नहीं देखा है, और एस ए को डिराइव कर रहा है, ए की भी आने वाली चीजों को उसने नहीं देखा रहेगा। आर बी क्लियर विद दिस? आर बी क्लियर विद दिस? यस मैम। वर्ड वर्ड यस मैम। अक्षिता, अक्षिता समझ में आ रहा है? तुलसी तो किसी रिप्लाइंग, वर्ड वर्ड अक्षिता। मैम उसका नेटवर्क प्रॉब्लम है आज। ओके, तो आर यू इन द लेक्चर और नॉट, मतलब ओके फाइन, ठीक है। आई डोंट नो, तो इज शी इन द लेक्चर और नॉट, मतलब, और यू नो कैन मैम, टाइप। अभी 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 वो ली हुई, अभी फिर से आ रही, लेकिन उसे अभी इसमें बता रहा है कि है, लेकिन वो है नहीं। आ रही है अभी, नेट नेट ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, तुलसी यू आर देयर राइट, ठीक है चलेगा। सो इतना समझ रहे हैं व्हाट इज दैट? इतना समझा तुलसी? व्हाट इज यस मैम। ऑगमेंटेड ग्रामर? ठीक है। यस चलो, मैम। अब लेट अस फर्स्ट राइट जो एल आर जीरो क्या होता है, फिर वी विल राइट व्हाट इज अ ऑगमेंटेड ग्रामर, एंड देन वी विल डू। ठीक है, चलो लिखो, लिखो एल आर पार्सर, द एल आर पार्सर, द एल आर पार्सर
The LR parser is an efficient bottom-up syntax analysis technique. The LR parser is an efficient bottom-up syntax analysis technique that can be used for a large class of context-free grammar. That can be used for a large context that can be used for a large class of context-free grammar. Are we done, Tulsi? Are we done? Yes, sir. ठीक है? This technique is also called LR0 parsing. This technique is also called as LR0 parsing. समझा? लिखा? Yes, sir. लिखो. The first L stands for left to right scanning. The first L stands for left to right scanning. The next R stands for rightmost derivation in reverse order. The next R stands for rightmost derivation in reverse order. Zero stands for number of input symbols of look ahead. Number of input symbols of look ahead. Are we clear? Are we clear? Yes, ma'am. ठीक है. नेक्स्ट सेक्शन डालो ऑगमेंटेड ग्रामर. नेक्स्ट सेक्शन डालो ऑगमेंटेड ग्रामर. जो भी मैं बता रही हूँ उसको समझ के लिखो. ठीक है. डू नॉट राइट एज इट इज. समझो कि जो मैम ने पढ़ा है वही हम लिख भी रहे. ठीक है. लिखा ऑगमेंटेड ग्रामर का हेडिंग. Yes, ma'am. ठीक है. नेक्स्ट लिखो इफ जी इज अ ग्रामर. इफ जी कैपिटल जी. ठीक है. इफ कैपिटल जी इज अ ग्रामर विद अ स्टार्टिंग सिंबल कैपिटल एस. इफ जी इज अ ग्रामर with a starting symbol S, then Yes, yes, then ma'am. then G dash is a grammar. G dash bracket में लिखो augmented grammar for capital G. Then G dash bracket में लिखो augmented grammar for capital G is a grammar with a new starting symbol S dash and production S dash tends to dot S, जो हमने ये वाला पढ़ा. Are we done? Are we done? Yes, ma'am. अक्षिता तुमको ऑगमेंटेड ग्रामर समझा बच्चा क्या होता है? बिकॉज आप थे नहीं या Yes, पता नहीं मेरे ma'am. को. वो नीचे का S tends to dot A वाला. हम्म. वो नहीं आया. हाँ, वो बताओ ना. ठीक है. देखो ये तुम्हारा ग्रामर है जी. ठीक है. और ये ग्रामर के अंदर आपकी दो प्रोडक्शन है. ऑगमेंटेड ग्रामर क्या बोलता है जी डैश होएगा. बट वो जी डैश में हम लोग क्या करेंगे पहला ये वाला प्रोडक्शन डालेंगे. आंख बंद करके डालना एस डैश टेंस टू डॉट एस. डॉट का मतलब क्या है कि डॉट के पहले उसने क्या रीड किया और जो चीज डॉट के बाद है उस वो मतलब पार्सर वो रीड करने वाला है. अगर हम बोल रहे हैं कि भाई इसके हिसाब से मतलब क्या हुआ कि इसने एस भी अभी तक रीड नहीं किया है. राइट अक्षिता. ये Yes, ma'am. प्रोडक्शन. तो अगर एस नहीं रीड किया है तो एस से जो डिराइव होगा वो भी उसने रीड नहीं किया होगा. राइट. तो एस से डिराइव कौन सा हुआ है डॉट ए ए ए.
तो अगर एस नहीं रीड हुआ है तो ये ए भी नहीं रीड हुआ है, तो ए वाला भी क्या होगा, सबके सब इन शॉर्ट क्या हुए कि नहीं रीड हुए। आर बी क्लियर? यस मैम। सबको समझाओ व्हाट इज दिस ऑगमेंटेड ग्रामर। सो ऑगमेंटेड ग्रामर इज नथिंग बट, जब तुमने ये प्रोडक्शन डाल दिया तो अब ये ग्रामर क्या बन गया, जी से बन गया जी डैश। आर वी क्लियर विद दिस? आर वी क्लियर विद दिस एवरीवन? ठीक है। तुलसी अक्षिता क्लियर है बच्चा लोग? यस मैम। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सब लोग लिखो। द पर्पस ऑफ दिस न्यू स्टार्टिंग प्रोडक्शन, द पर्पस ऑफ दिस न्यू स्टार्टिंग प्रोडक्शन is to indicate, is to indicate the purpose, the purpose of this new starting production is to indicate, is to indicate to the parser, to the parser when it should stop parsing, when it should stop parsing. आर वी क्लियर विद दिस? तो हमने जो ये नया प्रोडक्शन डाला, ये क्यों डाला, ताकि हम बता सके पार्सर को कि पार्सर तुमने कहाँ तक रीड किया और तुम्हें कहाँ तक रीड करना बाकी है। तो दैट इज नथिंग बट योर ऑगमेंटेड ग्रामर। सो मैं वापस लाइन रिपीट कर रही हूँ। द पर्पस ऑफ दिस न्यू स्टार्टिंग प्रोडक्शन इज टू इंडिकेट टू द पार्सर व्हेन इट स्टॉप पार्सिंग। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? लिखा आप लोग दोनों ने? मैम। गाइस प्लीज रिस्पॉन्ड यस और नो। व्हाट अबाउट तुलसी? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। द डॉट बिफोर एस, द डॉट बिफोर एस इंडिकेट्स, द डॉट बिफोर कैपिटल एस, द डॉट बिफोर कैपिटल एस indicate, indicate the left side of dot, indicate the left side of a dot has been written by a compiler, has been read by a compiler. The dot before S indicate the left side of dot has been read by a compiler. Are we done? यस मैम। And the right side of dot, and the right side of dot is yet to be read by a compiler. And the right side of dot is yet to be read by a compiler. Are we done? यस मैम। ठीक है, अब लिखो सब लोग नीचे, स्टेप्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग द एल आर पार्सिंग टेबल। जैसे हमने LL1 का टेबल बनाया था राइट, वैसे हम लोग LR का भी टेबल बनाएंगे, पूरा प्रोसेस फॉलो करके। तो लिखो स्टेप्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग द LR पार्सिंग टेबल, स्टेप्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग द LR पार्सिंग टेबल। फर्स्ट लिखो राइटिंग ऑगमेंटेड ग्रामर, पहले हम लोग को ऑगमेंटेड ग्रामर लिखना है, राइटिंग द ऑगमेंटेड ग्रामर। आर वी डन? यस मैम। नेक्स्ट लिखो LR0, स्टेप 2 लिखो LR0, मैं बता रही हूँ LR0, LR0 कलेक्शन ऑफ आइटम्स टू बी फाउंड, LR0 कलेक्शंस ऑफ आइटम्स टू बी फाउंड। लिखा? लिखा? यस मैम। ठीक है, स्टेप 3 लिखो, स्टेप 3 लिखो डिफाइनिंग टू फंक्शन, डिफाइनिंग टू फंक्शन, फर्स्ट इज अ गो टू, प्लीज स्क्रीन पे देखना गो टू, एंड सेकेंड इज नथिंग बट योर एक्शन। Defining two function, go to, and action.
आर बी डन? आर बी डन? लिखो go to applies on non-terminal and action applies on terminal. Very important point. Go to applies on non-terminal and action applies on terminal. Are we done? Are we done? Yes, ma'am. ठीक है, चलो। अब बिफोर स्टार्टिंग ऑगमेंटेड ग्रामर तो अब आप लोग को समझ गया है। बिफोर स्टार्टिंग व्हाट इज शिफ्ट, बिफोर व्हाट इज रिड्यूस, बिफोर व्हाट इज गो टू, व्हाट इज एक्शन। मैं एक ग्रामर दे रही हूँ, उसका सब लोग मुझे रिप्लाई करेंगे व्हाट इज फर्स्ट एंड फॉलो। व्हाट इज फर्स्ट एंड फॉलो अच्छे से कैलकुलेट करना, गलत नहीं होना चाहिए। चलो, व्हाट इज फर्स्ट एंड फॉलो। चलो, हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन फर्स्ट एंड फॉलो फॉर दिस? डन मैम। भेजो आंसर अपना, पर्सनली सब लोग अपना आंसर भेजो ऑन जूम चैट और ऑन व्हाट्सएप, एनीथिंग इज फाइन। सारी लगता है कि कितना सुंदर है कोई सा सब सारी लगता है कि कितना सुंदर है। ओके, लेट मी चेक। अक्षिता ने भेज दिया आंसर, लेट मी चेक। अक्षिता आपका फर्स्ट ऑफ एस आपका करेक्ट है बच्चा, फर्स्ट ऑफ ई भी करेक्ट है, फॉलो ऑफ एस इज करेक्ट। ठीक है, व्हाट इज फॉलो ऑफ ए इज रॉन्ग। ए कहाँ पे आ रहा है? राइट हैंड साइड पे देखो कहाँ पे ए आ रहा है। फॉलो ऑफ ए गलत है आपका, तुम्हारा भी तुलसी फॉलो ऑफ ए गलत है। कॉपी तो नहीं किया ना, दोनों का आंसर सेम आ रहा है। व्हाट इज फॉलो ऑफ ए? देखो ए कहाँ पे, राइट हैंड साइड पे, उस हिसाब से निकालो। व्हाट इज फॉलो ऑफ ए? व्हाट इज फॉलो ऑफ ए?
मैम एक ही बाजू में ए ही है तो फर्स्ट ऑफ ए आएगा। करेक्ट। तो फिर क्या आएगा? फिर डॉलर आएगा, कॉमा ए आएगा, कॉमा बी आएगा। आर बी गुड? आर बी गुड अक्षिता? ए के बाजू में कुछ भी हो, भले ही वो अपने आप को बुला रहा हो, बट उसका आपको फर्स्ट कंसिडर करना है। तो मैम इधर ए है तो इसका क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑफ ए। मैम इधर ए तो इसका क्या हो जाएगा? फॉलो ऑफ एस। आर बी क्लियर? यस आर बी मैम। क्लियर? सबको यस समझ रहे हैं? मैम। यस मैम। ठीक है। अब मेन हम लोग चालू कर रहे हैं। व्हाट इज ऑगमेंटेड ग्रामर, व्हाट इज गो टू, व्हाट इज एक्शन। और जब हम टेबल बनाएंगे तब हम देखेंगे क्या होता है शिफ्ट मूव्स, क्या होता है रिड्यूस मूव। तो फॉर सिंप्लिसिटी के लिए लेट मी एक्सप्लेन यू विद वन एग्जांपल ओवर ये। ठीक है? मैंने आपको यही वाला सम लिखा है, एस टेंस टू ए टेंस टू ए बी। आर वी क्लियर विद दिस? आर वी क्लियर विद दिस? तो ऑगमेंटेड ग्रामर क्या होता है? ऑगमेंटेड ग्रामर ये होता है जिसमें हम क्या डाल देंगे, एस डैश टेंस टू डॉट एस, मतलब ये वाला प्रोडक्शन। आर वी क्लियर? यस अब मैम। अगर राइट, प्लीज एक्नॉलेज, हाँ, क्योंकि एक एक स्टेप इंपॉर्टेंट है। स्टेप वन आएगा तो स्टेप टू आएगा, स्टेप टू आएगा तो स्टेप थ्री आएगा, स्टेप थ्री आएगा तो स्टेप फोर आएगा, स्टेप फोर आएगा तो फाइनल स्टेप फाइव आएगा। ठीक है? अब अगर एस रीड नहीं किया है तो एस से आने वाले जितने भी चीज है उसको भी उसने रीड नहीं किया है। तो एस से आने वाला चीज कौन सा है? डॉट ए। फिर ए से आने वाला चीज कौन सा है? डॉट ए। और एक और कौन सा है? डॉट बी। आर वी क्लियर? डॉट कहाँ पे लगा है और वो डॉट का मतलब क्या है? आर वी क्लियर विद दिस? यस मैम। सबको क्लियर है अक्षिता? यस मैम। ठीक है। तो पहला स्टेप आपको लिखाया था कि ऑगमेंटेड ग्रामर फाइंड आउट करना है, तो वी आर गुड विद ऑगमेंटेड ग्रामर। आर वी गुड? आर वी गुड? Now let's go. Now let's go for next LR0 collection of item. What is LR0 collection of item? मैं बताती हूँ LR0 collection of items क्या है। देखो आप लोग को भी अब एक क्या बनाना है, एक स्टेट डायग्राम बनाना है। एक स्टेट डायग्राम बनाना है। वो स्टेट डायग्राम आप लोग कैसे बनाओगे? देखो, लेट्स से हम चालू करेंगे हमेशा विथ समथिंग कॉल्ड एज दिस। एक मिनट गाइस, वी विल वी विल स्टार्ट विथ I0। देखो हमेशा याद रखो, आपको हर एक स्टेट को डिनोट करना है बाय I0, I1, I2, I3, I4। I0 मतलब स्टार्टिंग स्टेट है, इसके अंदर क्या होगा? पूरा ऑगमेंटेड ग्रामर रहेगा। क्या सबको ये पॉइंट क्लियर है? क्या सबको ये पॉइंट क्लियर है? यस हम्म। मैम। अब देखो, डॉट के आगे क्या है? यहाँ पे एस है। तो हम क्या करेंगे, एस का एक एरो बनाएंगे और हम बोल रहे हैं कि अब मैंने एस को रीड कर लिया। अगर एस को रीड कर लिया तो एस डैश टेंस टू एस डॉट हो जाएगा। आर वी क्लियर विथ I1 स्टेट? I1 स्टेट कैसा बना? यस मैम। ए गाइस प्लीज जल्दी जल्दी एक्नॉलेज। आर वी क्लियर? I0 से I1 हम कैसे गए? यस मैम। ठीक है। वो दूसरी बंदी कहाँ पे है? अक्षिता, यस मैम। प्लीज रिप्लाई। हाँ, आई डोंट वांट टू कॉल बाय और नेम्स, कोई वीआईपी नहीं हो, जो दो ही लोग हो, जल्दी जल्दी बोलो। नेक्स्ट डेट एस पढ़ लिया। अब डॉट के आगे क्या है? इमीडिएट आगे क्या है? कैपिटल ए। तो मतलब क्या हुआ कि मैं अभी डॉट के इमीडिएटली आगे वाला पढ़ रही हूँ या पढ़ चुकी हूँ। जब मैंने ये बना दिया मतलब मैंने एक ए को पढ़ लिया। तो ये क्या हो जाएगा? ए डॉट ए। आर वी क्लियर विद दिस? यस मैम। आर वी क्लियर विद दिस? अब अब डॉट के आगे क्या है? ए। तो ए के सारे प्रोडक्शंस को लिखो, तो ए के सारे प्रोडक्शन क्या होंगे? डॉट ए से डॉट बी। आर बी क्लियर विथ I0, I1 एंड I2? यस मैम। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? अब यहाँ पे क्या है भाई? डॉट ए, स्मॉल ए। तो मतलब अब क्या हुआ, जब मैंने ऐसा एरो बनाया मतलब क्या हुआ कि मैंने ए रीड कर लिया और कैपिटल ए रीड करना बाकी है। तो पहला प्रोडक्शन समझा इसका क्या आ रहा है? ए यस टेंस टू ए मैम। डॉट ए। और फिर वापस ए से जो डिराइव हो रहा है उसको आपको लिखना पड़ेगा। आर बी क्लियर विद I0, I1, I2, I3? यस मैम। ठीक है। अब बी आया, तो ए से मैंने बी को पढ़ लिया।
आर वी क्लियर विथ I4? यस मैम। अब मुझे ये बताओ, I1 और I4 से अब उसको हम आगे क्यों नहीं सॉल्व कर रहे? सोचो, इसको हम आगे क्यों नहीं सॉल्व कर रहे? उसके बाद कुछ नहीं। उसके बाद कुछ है ही नहीं सॉल्व करने के लिए, राइट? मतलब डॉट के बाद अब कुछ है ही नहीं आगे सॉल्व करने के लिए, तो I1 और I4 कंप्लीट हो चुका है। आर वी गुड? आर वी गुड? मैम। यस मैम। तो I0 कंप्लीट हो गया, I1 कंप्लीट हो गया, I4 कंप्लीट हो गया। अब लेट अस सॉल्व I2। I2 में वापस अब ये स्टेट को रखेंगे और इसके लिए सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है, ए को अगर रीड करेगा तो ये बन जाएगा एस से ए डॉट। आर वी क्लियर? यस आर वी मैम। क्लियर? अब वापस मैम ये वाले स्मॉल ए को रीड करेंगे तो ये बनेगा ए डॉट ए, और फिर वापस ये पूरा प्रोसेस वापस आएगा, तो इसी के लिए स्मॉल ए के लिए ये यहाँ पे चला गया। आर वी गुड? यस मैम। यस मैम। अगर ए से हम लोग बी रीड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ए से बी डॉट, तो ये इधर चला जाएगा एरो। मतलब सेम स्टेट को क्यों रिपीट करना है बार बार, उसको बस पॉइंट करवा दो। आर वी गुड? यस मैम। यस मैम। तो I2 समझ गया कैसे बन गया? I2 समझ गया कैसे बन गया? अब यस मैम। ये स्टेट देखते हैं। ये स्टेट में हम लोग पहला क्या देखेंगे, डॉट किसके आगे, कैपिटल ए के आगे, तो ये क्या बन जाएगा, ए से ए डॉट। आर बी गुड? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट वाला ये क्या बनेगा, ए डॉट ए, फिर ए का क्या बनेगा, ए से वापस डॉट फिर ए से बनेगा डॉट बी। तो अगर आप देखोगे ये अपने आप को ही वापस रिप्रोड्यूस कर रहा है, इसके लिए बना सेल्फ लूप। आर बी क्लियर? यस मैम। तुलसी? यस मैम। और वापस ए से बी डॉट करेंगे, बी रीड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा आपका I4। समझा? यस मैम। ठीक है। तो अगर आप कुल मिला के देखो तो देर आर लाइक टोटल 7 states that are created। I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6, जैसे कंप्यूटर साइंस में एग्जांपल है, या जो कि एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, राइट? तो यहाँ पे भी है, वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम I0, I1, ये नेमिंग कुछ भी हो, स्टार्टिंग वाला स्टेट शुड बी I0, इसको I4 करना है, कुछ भी है, लेकिन कुल मिला के इफ यू सी देर आर I0 to I6, मतलब देर आर 7 states that are possible in this particular parser। एंड आर बी क्लियर की डॉट का मतलब क्या है, डॉट से पहले का मतलब क्या है, डॉट का बाद का मतलब क्या है? यस मैम। यस मैम। डॉट का पहले मतलब पार्सर ने क्या क्या पढ़ लिया है, डॉट का आने का मतलब, आगे आने का मतलब, जो भी सिंबल्स है वो क्या क्या पढ़ने वाला है। तो अगर देखोगे यहाँ पे 4 प्रोडक्शन थे, चारों को कभी ना कभी तो पार्सर ने कंप्लीटली रीड किया होगा। कैसे रीड किया है, ये वाला प्रोडक्शन इधर रीड हो चुका है कंप्लीटली, ये वाला प्रोडक्शन यहाँ पे रीड हो चुका है कंप्लीटली, यहाँ पे क्या होना चाहिए, डबल ए डॉट होना चाहिए, ये इधर हो चुका है, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए डॉट, ये इधर हो चुका है। तो यू शुड सी कि आपके जितने भी स्टेट्स बन रहे हैं, सब स्टेट्स में सारे प्रोडक्शन शुड बी लाइक क्लियरली रेड बाय पार्सर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आर वी क्लियर? आर वी यस क्लियर? मैम। ठीक है। अब मैं इसमें बताती हूँ, अब मैं इसमें बताती हूँ कि व्हाट डू वी मेंट बाय गो टू एंड व्हाट डू वी मेंट बाय एक्शन। ठीक है। गो टू मतलब क्या, अगर ये स्टेट पे कैपिटल एस आएगा तो मैं I0 से I1 जाऊंगी, ये स्टेट पे कैपिटल ए आएगा तो मैं I2 पे जाऊंगी, ये स्टेट पे कैप स्मॉल ए आएगा तो मैं I3 जाऊंगी, ये स्टेट से I4 आएगा तो मैं यहाँ पे जाऊंगी, I2, ये स्टेट पे कैपिटल ए आया तो गो टू इज लाइक, मतलब फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, दैट इज नथिंग बट योर गो टू फंक्शन। आर वी क्लियर विद दिस? आर वी क्लियर विद दिस यस एवरीवन? यस मैम। ठीक है। तो पहला स्टेज हो गया, सेकेंड स्टेज हो गया है। ठीक है। अब तीसरा स्टेट क्या बनता है कि अब हम लोग को गो टू और एक्शन को डिफाइन करना है, गो टू और एक्शन को डिफाइन करना है। अच्छा, पहले सब लोग गो टू एंड एक्शन को डिफाइन करने से पहले व्हाट आई रिक्वेस्ट इज लाइक, चलो स्टेप 1 लिखो पहले, ऑगमेंटेड ग्रामर क्या होता है, स्टेप 2 करो। और गाइस, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, या जितने भी यहाँ पे आप देख रहे हो, ये सब चीज को बोलते हैं LR0 आइटम्स। वाई LR0 आइटम, सब में कहीं ना कहीं डॉट है, और डॉट से पहले क्या रीड है और डॉट से क्या रीड होने वाला है, उसको कुल मिला के बोलते हैं LR0 आइटम्स। तो एवरीवन फर्स्ट राइट स्टेप वाले को पहले ये ऑगमेंटेड ग्रामर लिखो, लेट मी नो वंस इट इज डन, देन यू कैन गो फॉर स्टेप 2। चलो पहले अपने
नोटबुक पे लिखो व्हाट इज स्टेप 1 एंड व्हाट इज स्टेप 2। चलो, और समझ समझ के लिखो ये स्टेट डायग्राम कैसे बन रहा है, क्योंकि मैंने एक बार ये एक्सप्लेन कर दिया। अभी आई विल थ्रो यू लाइक 3 सम्स ऑन यू गाइस, एंड फिर तुम्हें सॉल्व करना है। तो देखो कि डॉट ए के बाद ए के प्रोडक्शन लिख रहे हैं, डॉट एस के बाद एस के प्रोडक्शन लिख रहे हैं। तो वैसा सोचो, क्यों उसके आगे सेल्फ लूप है, क्यों उसके लिए नया स्टेट नहीं बनाया, क्योंकि वो ऑलरेडी रिपीट हो रहा है। तो नया स्टेट मत बनाओ, उसको बस पॉइंट आउट करवा दे। So write what is augmented grammar the steps, and then write finding LR0 collection of items. And just let me know once you guys are done. Are we done? नो मैम। मैम, हम्म। ये जो L3 वाला प्रोडक्शन है, कौन सा एमटी वाला प्रोडक्शन बचा? L3 L3 आई आई थ्री आई थ्री आई वाला। I3 वाला, हाँ बता। हाँ, उसमें हम ए निकालेंगे तो सिर्फ मतलब ए से ए टेंस टू ए डॉट ए आएगा, लेकिन उसके बाद ए टेंस टू डॉट ए ए वो कहाँ से आए? ये वाला आप इसका बोल रहे हो, ये मतलब आप कौन से ट्रांजिशन की बात कर रहे हो, कैपिटल है या स्मॉल है? स्मॉल है, स्मॉल है। स्मॉल है, ठीक है। कैपिटल ए के लिए तो समझ रहा है कि कैपिटल ए के लिए हो जाएगा ए टेंस टू ए डॉट, ठीक है। हाँ अब हाँ। ये अब ये स्मॉल ए, तो स्मॉल ए के लिए अगर मैं करूंगी तो स्मॉल ए, अभी अभी देखो इनिशियल स्टेट क्या है आपका, ऐसा लिखा हुआ है, राइट? यही आपका इनिशियल स्टेट। अब मैं बोल रही हूँ कि अगर मैंने स्मॉल ए पढ़ लिया, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ए डॉट के पहले आ जाएगा, एंड दिस वुड बी समथिंग लाइक दिस। करेक्ट है यस इधर यस। तक? हाँ। अब वापस ए से क्या क्या आ रहा है, ए से क्या आ रहा था भाई, डॉट ए, और ए से वापस क्या आ रहा था, डॉट बी। और अगर आप देखोगे ये सब कुछ मैच करता है वही स्टेट से। कौन से स्टेट से, देखो, डॉट ए, फिर नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, नेक्स्ट वाला हो जाएगा आपका ए डॉट ए, और एक हो जाएगा डॉट बी। सिर्फ ऑर्डरिंग अलग है, बट जितने भी उसके अंदर प्रोडक्शंस थे वही सेम है। तो दैट्स वाई वो सेल्फ लूप जा रहा है। आर वी क्लियर? यस मैम। ठीक है, गुड। इसके लिए सारा डायग्राम जो भी बच्चे लोग बनाओगे ना, उसको समझ समझ के बनाना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन देखो, बहुत सारे गेट में ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि इसमें कितने नंबर्स ऑफ स्टेट्स है। तो कोई ऐसा नहीं बोल सकता है 7 है 9 है, सबके या तो 7 आएंगे या तो सबके 8 आएंगे। देर इज नो मिनिमल कॉन्सेप्ट ओवर हियर, देर इज नो मैक्सिमल कॉन्सेप्ट ओवर हियर। जो भी है बस यही आएगा।
इतना ही मेमोरी ये पार्सर लेगा अपने। उतना मेमोरी ले रहा है 7 स्टेट। 7 स्टेट इज नथिंग बट 7 मेमोरी। अब वो मेमोरी स्टैक में हो, हीप में हो, कहीं पे भी हो। जैसे ये बन जाए LR0 का डायग्राम, जस्ट लेट मी नो। वी विल गो टूवर्ड्स द नेक्स्ट जो पार्सर टेबल है। एंड माइंड माई वर्ड्स, कंपाइलर में सबसे बड़ा सेकंड चैप्टर ही है, उसके बाद सारे चैप्टर्स इज लाइक 1-1.5 बाय संडे दिस चैप्टर विल गेट ओवर। LR0 आया तो SLR1 आएगा, SLR1 आया तो LLR1 आएगा, LLR1 आया तो जाके CLR1 आएगा। तो एवरीथिंग इज लाइक अ लिंक लिस्ट। जस्ट लेट मी नो व्हेन यू आर डन। डन मैम। अभी डन गाइस? अभी डन? यस मैम। ठीक है। अब हम लोग इसका पढ़ते पार्सर टेबल कैसे बनेगा। अब लाइक LL1, इसका पार्सर का एक अलग फॉर्मेट है विच आई विल शो यू। सिर्फ पार्सर के एंट्रीज मत देखो जो यहाँ पे दिखा रहे। फर्स्ट अंडरस्टैंड ये टेबल कैसे बना है, क्योंकि हर एक पार्सर में सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, ये सब आपको नहीं समझेगा। सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, टेबल चेंज हो रहा है। ठीक है, लेट मी जूम इट। जस्ट लेट मी नो, आप लोग को ये टेबल दिख रहा है अभी? अरे, एक मिनट। हाँ, सबको ये टेबल दिख रहा है? एवरीवन? यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब क्या करना है, पहला सब जितना मैं बताऊंगी उतना उतना अपने नोटबुक पे लिखना है, ना पूरा कॉपी करना है अपने से। अंडरस्टैंड हाउ ईच सेल इज फिल्ड। ठीक है। पहला 0 1 2 3 4 5 6, कोई मुझे बता सकता है ये 0 to 6 कहाँ से आया है? आइटम्स। I0, राइट। यहाँ पे 7 स्टेट्स थे, तो 7 स्टेट्स के लिए हमने क्या डाला है, 0 1 2 3 4 5 6 डाला है। ठीक है। अब ये टेबल में आपके दो पार्ट रहेंगे, क्या रहेगा, एक रहेगा एक्शन और एक रहेगा गो टू। एक्शन जो होता है, मैंने आपको लिखाया है कि एक्शन ऑलवेज हैपन ऑन नॉन टर्मिनल्स, राइट। एंड गो टू हैपेंस ऑन, सॉरी, एक्शन हैपेंस ऑन टर्मिनल्स एंड गो टू हैपेंस ऑन नॉन टर्मिनल। तो एक्शन में क्या हो जाएगा भाई, कौन कौन से टर्मिनल्स है, अगर ये ग्रामर में देखने को जाओगे तो कौन कौन से टर्मिनल थे। जो टर्मिनल क्या होता है, जो और डिराइव नहीं कर सकते हैं, राइट। तो अगर ये वाले ओरिजिनल ग्रामर में देखने जाओगे तो कौन कौन सा हम डिराइव नहीं कर सकते, स्मॉल ए, स्मॉल बी नहीं डिराइव कर सकते। और क्या क्या हम डिराइव कर सकते हैं बच्चा लोग, कैपिटल एस एंड कैपिटल ए। आर वी क्लियर विद दिस? आर बी क्लियर विद दिस? तो यस मैम मैम। आपके टेबल पे भी जो दिया, यहाँ पे स्मॉल ए स्मॉल बी रहेगा। और डॉलर हमेशा लिखो, क्योंकि स्टैक का बेसिक सिंबल क्या है, स्टैक जब एम्प्टी रहता है उसका बेसिक सिंबल किससे डिनोट किया रहता है, बाय डॉलर। तो डॉलर आपको लिखना पड़ेगा। और गो टू में क्या लिखोगे, इधर आएगा ए एंड इधर आएगा कैपिटल बी। दैट इज वाई एम टेलिंग दिस टेबल इज रॉन्ग। जितना आपको बताया जा रहा है उसी हिसाब से लिखो। ठीक है। तो ये हो जाएगा, एक ए हो जाएगा, एक होएगा कैपिटल एस होएगा, ये कैपिटल एस। दिस इज A B एंड डॉलर। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? तो चलो पहले टेबल का बनाओ, I0 से I6, फिर एक्शन बनाओ, फिर गो टू बनाओ। एक्शन के नीचे अंदर लिखो A B डॉलर, गो टू के अंदर लिखो ए एंड कैपिटल एस।
आर वी क्लियर गाइस? आर वी क्लियर? व्हाट अबाउट तुलसी? यस मैम। ठीक है, अब देखो, अब सुनो। गो टू का मतलब तो हमें समझ गया है कि भाई 0 से 2 जाना है या 1 से 3 जाना है। सबको समझा? गो टू मीन्स व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, दैट इज नथिंग बट गो टू। आर वी क्लियर? ठीक है। व्हाट इज द एक्शन? गाइस, एक्शंस आर ऑफ टू टाइप। एक क्या होता है, शिफ्ट होता है, और दूसरा क्या होता है, रेड्यूस। अब शिफ्ट का मतलब क्या होता है हिंदी में? बाजू में खिसक, राइट? सो सिमिलरली समथिंग, लेट्स से इफ आई हैव दिस ए डॉट ए, जब मैं डॉट को बोलती हूँ भाई आगे जा, मतलब आगे जा, तो जब ये आगे जाएगा तो अब ये प्रोडक्शन बन जाएगा दिस। एम आई करेक्ट? एम यस आई मैम। करेक्ट? लेट्स से इफ आई हैव समथिंग लाइक दिस एस डॉट ए बी, इसका शिफ्ट क्या होगा, अगला शिफ्ट क्या होगा, ए डॉट बी। आर वी गुड? आर वी गुड? यस मैम। तो एक्शन में शिफ्ट का मतलब समझ गया, मतलब बाजू में जाओ, मतलब आगे रीड करो। दैट इज नथिंग बट योर शिफ्ट ऑपरेशन। व्हाट इज अ रेड्यूस ऑपरेशन? रेड्यूस ऑपरेशन क्या होता है, जब आपने उसको कंप्लीटली रीड कर लिया ना, तो अब ए को लिख दो कैपिटल एस। ए को क्या लिख दो, कैपिटल एस। अगर आप इसको मैं लिख सकती हूँ क्या, कैपिटल एस? नहीं। क्यों? क्योंकि मैम बी रीड होना बाकी है। तो जब आपने कंप्लीटली रीड कर लिया और उसके आगे कुछ भी नहीं है, तो आप ये पूरे राइट हैंड साइड को रिप्लेस करते हो सकते हो बाय लेफ्ट हैंड साइड। दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ रेड्यूस ऑपरेशन। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? यस सबको मैम। समझ रहा है शिफ्ट का मतलब क्या है? सबको समझ रहा है रेड्यूस का मतलब क्या है? आर वी गुड? ठीक है। अब हम लोग जाते हैं पहले गो टू में। गो टू मतलब क्या हो रहा है, जहां पे आपने सारे एक्शंस को लिखा है। अब अपना डायग्राम खोलो। डायग्राम में तुम लोग ने प्रॉपरली I0 I1 I2 ये सब मार्क किया था? प्रॉपरली मार्क किया था? किया था, सब लोगों यस ने मार्क मैम। किया? यस ठीक मैम। है। अब जीरो पे आओ। जीरो पे गो टू, जो कि सिर्फ नॉन टर्मिनल्स पे काम करता है। जीरो से कौन से दो नॉन टर्मिनल्स पे काम कर रहा है वो बताओ? जीरो से कौन से दो नॉन टर्मिनल्स पे वो काम कर रहा है? प्लीज टेल मी कैपिटल एस एंड कैपिटल ए बच्चा लोग, क्योंकि अभी राइट। तो जीरो से एस, कैपिटल एस में वो कौन से स्टेट पे जा रहा है? I1 यानी 1 पे जा रहा है, राइट। और जीरो से कैपिटल ए वो कौन से स्टेट पे जा रहा है? सॉरी, I2। तो गाइस, अभी जितना मैं बता रही हूँ, जीरो से कैपिटल ए जा रहा है 2 पे, जीरो से कैपिटल एस जाएगा 1 पे। आर बी क्लियर विद दिस लाइन? आर बी यस क्लियर विद मैम। दिस लाइन? तुलसी, व्हाट अबाउट यू? यस मैम। प्लीज रिप्लाई हाँ, क्योंकि एक टेबल नहीं समझा ना, आगे के टेबल्स नहीं समझेंगे। सो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग इट वेरी स्लो। ठीक है। अब मुझे बताओ, I1 पे कोई नॉन टर्मिनल्स एक्ट कर रहा है? तुम लोग डायग्राम देखो पहले। I1 पे कोई भी दो नॉन टर्मिनल्स है क्या? कोई भी नॉन टर्मिनल है I1 पे? हाँ? I1 से कोई भी दो नॉन टर्मिनल्स या कोई भी नॉन टर्मिनल्स पे एरो जा रहा है? नो मैम। गुड। I2 I4 पे? I4 पे? नो मैम। I2 पे? यस मैम। I2 पे कौन सा टर्मिनल जा रहा है बताओ? नॉन टर्मिनल जा कैपिटल रहा है। कैपिटल ए। और I2 से कैपिटल ए कहाँ पे जा रहा है बच्चा लोग वो? I5। 5। तो देखो, 2 के रो पे विथ कैपिटल ए इट इज गोइंग ऑन स्टेट नंबर 5। मेरे स्क्रीन पे आना। 2 पे ऑन कैपिटल ए पे इट इज गोइंग ऑन स्टेट नंबर 5। आर वी क्लियर विद दिस? आर वी क्लियर विद दिस? तो लिख दो अपने नोटबुक पे, 2 और ए के सेक्शन पे लिखो वो 5 पे जा रहा है। आर वी आर वी क्लियर? यस मैम। ठीक है। अब चलो I3 पे आओ। I3 पे कौन सा नॉन टर्मिनल काम कर रहा है? कैपिटल ए। और I3 से कैपिटल ए पढ़ के हम कहाँ जा रहे हैं? 6।
I6 पे तो समझ रहा है। अब देखो स्क्रीन पे हो, 3 on capital A is going to number 6 state. आर वी क्लियर? आर वी यस क्लियर? मैम। I4 पे कोई नॉन टर्मिनल है बच्चा लोग? नो मैम। I5 पे? I5 पे? नो मैम। I6 पे? नो। समझ गया सबको गो टू पार्ट क्या होता है? तो गो टू में तुम क्या लिखते हो, नंबर लिखते हो, मतलब कौन से स्टेट पे नॉन टर्मिनल पढ़ के तुम कौन से स्टेट पे गए, दैट इज नथिंग बट योर गो टू फंक्शन। आर वी क्लियर विद दिस राइट हैंड साइड का टेबल? यस मैम। तो सबको समझा, गो टू पार्ट इज क्लियर। अब नाउ लेट अस कम टू द लास्ट सेक्शन ऑफ द टेबल, दैट इज नथिंग बट योर एक्शन पार्ट। एक्शन पार्ट का मतलब क्या होता है? एक्शन में मैंने तुम्हें बताया कौन से दो टाइप होते हैं, एक होता है शिफ्ट, एक होता है रिड्यूस। तो शिफ्ट को लिखा जाता है बाय एस मूव्स एंड रिड्यूस को लिखा जाता है बाय आर मूव्स। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? यस मैम। तो देखो, पहले वापस जाते हैं हम लोग। अब शिफ्ट मूव्स है ना, वो हमेशा आपके टर्मिनल्स पे काम करता है। मतलब टर्मिनल्स मतलब क्या, जिसको आप ब्रेक नहीं कर सकते हो। अब वापस अपने डायग्राम पे जाओ, डायग्राम पे जाओ। स्टेट नंबर 0 से कौन से टर्मिनल्स पे हम लोग काम कर रहे हैं? आई कौन से? थ्री एंड I4। I3 एंड I4, लेकिन ऑन विच टर्मिनल बच्चा? स्मॉल ए एंड बी, राइट। तो देखो, I0 से स्मॉल ए पढ़ के हम लोग किधर जा रहे हैं, I3 पे जा रहे हैं। सो दैट इज नथिंग बट S3। मतलब यहाँ पे अब स्टेट नंबर ना लिख के हम लोग क्या लिखते हैं, S3 लिखते हैं। ठीक है। I0 से स्मॉल बी पढ़ के हम जा रहे हैं I4, उसको क्या लिखेंगे, S4। आर वी क्लियर? आर यस वी मैम। क्लियर? ठीक है। अब याद रखो, जो भी स्टेट में, कौन से स्टेट में एस डैश टेंस टू एस डॉट है? कौन से स्टेट में एस डैश टेंस टू एस डॉट है? I1। 1। तो 1 ऑन डॉलर है ना, हमेशा आपका आता है एक्सेप्ट। ये हमेशा याद रखो कि जिस स्टेट में आपने ऑगमेंटेड वाले प्रोडक्शन को कंप्लीटली रीड कर लिया था, वो स्टेट और डॉलर मिला के आपको हमेशा एक्सेप्ट देगा। आर वी गुड विद दिस? आर वी गुड विद दिस? अब अब मुझे बताओ, I2 से कौन से टर्मिनल्स पे काम हो रहा है, बताओ। I2 से कौन से टर्मिनल्स पे काम कर रहे हो? स्मॉल ए स्मॉल बी। हाँ, I2 से स्मॉल ए किधर जाएगा बच्चा? I3। वो I3 क्या लिखाएगा टेबल पे? S3। तो देखो, 2 ऑन ए क्या है, S3 है। I2 ऑन बी क्या दे रहा है आपको? S4। और S4। वो S4। सबको समझा, 2 ऑन बी क्या हो जाएगा, S4। आर बी गुड? आर बी गुड? यस मैम। ठीक है। अब I3 की बात करते हैं। I3 ऑन स्मॉल ए क्या हो रहा है? I3 पे जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा आपके टेबल पे? S3। S3। I3 पे स्मॉल बी कहाँ पे जा रहा है? S4। करेक्ट है सबको? इतना समझा? आर बी यस गुड? मैम। यस मैम। अब I4 पे कहीं पे भी टर्मिनल्स है बच्चा, आउटवर्ड? I5 पे? I6 पे? तो एटलीस्ट सबको समझा शिफ्ट मूव्स अभी तक कैसे आ गए सारे? ठीक है। तुलसी, व्हाट अबाउट यू? यस मैम। चलो पहले सारे शिफ्ट मूव्स कंप्लीट करो। अपने नोटबुक पे पहले शिफ्ट मूव्स लिखो। गो टू वाले मूव्स ऐसे सपोज कर लिया होगा, फिर मैं आपको बताऊंगी रेड्यूस मूव्स कैसे लिखना है। शिफ्ट वाले मूव्स को लिखो, 1 ऑन डॉलर को एक्सेप्ट करना, उसको स्टार मार्क करना। याद रखना, जहाँ पे भी ऑगमेंटेड ग्रामर है उसके साथ डॉलर जाएगा तो वो हमेशा एक्सेप्ट होगा।
डन। चलो, डन मैम। नाउ लेट नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू राइट रेड्यूस में। आप अपने ग्रामर में जाओ, सॉरी ग्रामर नहीं, आप अपने डायग्राम पे जाओ एंड वहां पे देखो कौन कौन से स्टेट पे, कौन कौन से स्टेट में आपने कोई भी प्रोडक्शन को कंप्लीटली रीड किया है। कंप्लीटली रीड किया है, कौन कौन से स्टेट पे आप लोग ने कंप्लीटली रीड कर लिया है कोई भी प्रोडक्शन को। I1, और I5, और I6 और I4। I3 पे कहाँ पे कंप्लीटली रीड किया, I3 पे नहीं किया है ना, नहीं, I6। I6 पे। तो I1 पे रीड किया है, I5 पे रीड किया है, I4 पे रिड्यूस किया है, I6 पे रीड किया है, राइट। इतना ही है, ठीक है। यस मैम। I1 का, हाँ I1 मुझे नहीं कंसिडर करना है क्योंकि वो मैंने खुद से डाला था, तो मैं उसको भी कंसिडर नहीं करूंगी, ऑगमेंटेड बनाया था, ठीक है। अब लेट अस गो टुवर्ड्स द I4। I4 पे कौन सा टर्मिनल कंप्लीटली रिड्यूस हो रहा है। स्मॉल बी। हाँ, स्मॉल बी। कौन सा, स्मॉल बी, बोलो कौन सा। हाँ, कौन सा टर्मिनल रिड्यूस हो रहा है, स्मॉल बी। आप क्या कर लो, पहले जहां पे भी तुमने ऑगमेंटेड ग्रामर लिखा था ना बच्चे लोग, वहां पे हर एक प्रोडक्शन को ना इक्वेशन नंबर दो। इक्वेशन नंबर मतलब कि ये लिखो 0, ये लिखो 1, ये लिखो इक्वेशन नंबर 2, ये लिखो इक्वेशन नंबर 3। गो टू योर नोटबुक एंड राइट द प्रॉपर इक्वेशन नंबर फॉर ईच ऑफ देम। अगर कंबाइन करके लिखा है तो कंबाइन करके नहीं लिखना है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लाइंस पे हर एक प्रोडक्शन आना चाहिए। तो ये होगा इक्वेशन नंबर 0, ये होगा इक्वेशन नंबर 1, ये होगा इक्वेशन नंबर 2, ये होगा इक्वेशन नंबर 3। Just write it and let us come back. Zero, equation number 0, equation number 1, equation number 2, equation number 3. Are we done? यस मैम। ठीक है। अब यस नेक्स्ट, मैम। अब ए, अब ए टेंस टू बी डॉट है, राइट। ए टेंस टू बी डॉट यहाँ पे, ये ए टेंस टू बी कौन सा प्रोडक्शन नंबर है, इक्वेशन नंबर 3 है, राइट। करेक्ट है, करेक्ट है। यस मैम। तो I4 पे, मतलब स्टेट नंबर 4 पे सारे टर्मिनल्स पे तुम क्या लिख दोगे, R3। R3 कहाँ से आ रहा है, पहला तो क्या हो रहा है, R का मतलब क्या हुआ, रिड्यूस, मतलब मैंने सारा कुछ पढ़ लिया है। और ये नंबर कहाँ से आ रहा है, 312, दैट इज नथिंग बट ए इक्वेशन नंबर। तो ये क्या हुआ, रेड्यूस रेड्यूस रेड्यूस, कौन सा इक्वेशन रेड्यूस करना है, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। और इसको बाय डिफॉल्ट क्या करोगे तुम, सारे टर्मिनल्स प्लस डॉलर के अंदर लिख दोगे। आर वी क्लियर, आर वी क्लियर की I4 पे या स्टेट नंबर 4 पे ये R3 कैसे आया। यस मैम। ठीक है। नाउ लेट अस गो टूवर्ड्स द, अब बताओ नेक्स्ट स्टेट कहाँ पे है जहाँ पे तुम्हारा रिड्यूस हो रहा है। I5। चलो, I5 पे कौन सा प्रोडक्शन नंबर होएगा फिर तो बच्चा लोग, 1। 1। तो यहाँ पे क्या होएगा, 5 के अंदर सारे टर्मिनल्स के अंदर क्या आ जाएगा, R1 एंड R1। आर वी गुड, आर वी गुड। यस मैम। नेक्स्ट प्रोडक्शन कहाँ पे है जहाँ पे फाइनल टर्मिनल्स, जहाँ पे फाइनली सब कुछ रीड किया जा रहा है। सेकेंड। सॉरी, जल्दी बोलो आई बच्चा लोग, जल्दी सिक्स बोलो। आई आई सिक्स सिक्स हाँ, I6 पे कौन सा प्रोडक्शन नंबर कंप्लीटली रिड्यूस हो रहा है, सेकेंड। सेकेंड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R2 एंड R2। आर वी क्लियर, आर वी क्लियर, ये टेबल पूरा कैसे बना। यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब मुझे बताओ ये टेबल में कहीं पे भी मल्टीपल एंट्रीज है क्या, जैसे LL1 पे दो मल्टीपल एंट्रीज आती तो हम लोग बोलते थे नॉट LL1। यहाँ पे कोई भी सेल पे मल्टीपल एंट्रीज है क्या। नो। नो तो ये मैम। क्या होगा, तो ये क्या होएगा, LR0 ग्रामर होएगा। तो ये क्या होएगा, LR0 ग्रामर होएगा। आर वी गुड, आर वी गुड, यस मैम। सबको समझा। मैम। अब यस मैम। 5, अब 5 मिनट लो
एंड रीड करो। उसके बाद मैं तुम्हें एक नया सम दूंगी, वो नया सम तुम्हें सॉल्व करना है। और मुझे इसका आंसर सब लोग भेजेंगे पूरा डायग्राम के साथ कि मैम ये मेरा ऑगमेंटेड ग्रामर है, ये इतने मेरे नंबर्स ऑफ स्टेट्स है, और मैम ये मेरा टेबल है। अगर किसी को अभी भी कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। एक एक स्टेट देखो, एक एक डॉट देखो, और फिर मुझे बताओ कि मैम मुझे ये नहीं समझाया, मुझे वो नहीं समझा। डेट इज फाइन, मैं वापस बता सकती हूँ, बट अब आना चाहिए नेक्स्ट वाला। जस्ट लेट मी नो वंस यू आर डन। आर वी गुड? आर वी गुड? Yes, ma'am. सबको समझ रहा है LR0 क्या होता है? मैम फॉलो तो यूज ही नहीं हुआ, होएगा। फॉलो अभी नेक्स्ट पार्सर में यूज होएगा, सारा स्टेप सब कुछ रहेगा, बस एक चीज बदल जाएगा, उसी में फॉलो यूज होएगा। आर वी गुड? यस मैम। ठीक है, चलो सब लोग टाइम लेके प्रॉपरली सॉल्व करो। देखो अब ये सब कैसा है, ये एकदम दो दो मार्क्स के ना, एकदम इजी स्टेप है जहाँ पे कुछ मेथड फॉलो करना है एंड तुम्हें आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो मैंने आपको इजी फॉर्म में ऐसा लिख के दिया है कि एस से मुझे दो चीज मिल रहा है। एक मिल रहा है, प्रॉपरली कॉपी करना कौन सा कैपिटल है कौन सा स्मॉल है, तो उस हिसाब से आपको समझेगा कि कौन सा टर्मिनल होएगा कौन सा नॉन टर्मिनल होएगा। आर वी क्लियर विद दिस? Yes, यस ma'am. मैम। हम्म, चलो इसका सब लोग मुझे बताएंगे। पहला स्टेप वन करो, स्टेप वन करके मुझे उसका पिक्चर भेजो कि ऑगमेंटेड ग्रामर कैसे लिखा है। फिर स्टेप टू करो, स्टेप टू का पिक्चर भेजो। फिर स्टेप थ्री करना, ताकि वन बाय वन हम लोग सब कुछ देखते जाएंगे कि क्या करेक्ट है क्या रॉन्ग है। सेंड मी ऑन व्हाट्सएप और सेंड मी एनीवेयर, मतलब दैट इज एब्सोल्युटली अप टू यू।
गाइस, भेजा आप लोग ने? Yes, यस। ma'am. यस ओके, जस्ट मैम। मेरा, हाँ, एक मिनट। अक्षिता, सीरो प्रोडक्शन डॉट एम्बिएंट डॉट गुड। अक्षिता, आप आगे बढ़ सकते हो। अब ध्यान से बच्चा एक एक डायग्राम को ध्यान ध्यान से बनाना। जैसे पहला वाला एक डायग्राम है उसी को रेफरेंस करके ऐसे सॉल्व करते जाओ। लेट मी चेक तुलसी, योर आंसर बच्चा। आपका इमेज ऑगमेंटेड ग्रामर के साथ आपका करेक्ट है, उसको इक्वेशन नंबर भी दे दो। इक्वेशन नंबर 0 1 2 3 4, जो भी है 0 1 2 3। यस मैम। ठीक है, चलो। जब डायग्राम भी बनाओगे तो डायग्राम पे भी प्रॉपर नंबर ऑफ स्टेट्स लिखना, कितने स्टेट्स बन रहे, क्या बन रहा है, सब कुछ। मेक श्योर कैपिटल एस लिखो, कैपिटल वी लिखो, स्मॉल पी, स्मॉल एन। कोई भी कैपिटल से बड़ा कर दिया, बड़ा से कैपिटल कर दिया, सब गोड़ गड़बड़ हो जाएगा। तो मेक श्योर यू राइट एवरीथिंग प्रॉपरली। Just let me know once you are done.
Tulsi, I'm checking your answer. Okay, Tulsi, let me share what you are doing wrong. Okay, बच्चा, just give me a minute. मेजोरिटी सही है तुम्हारा, बट मुझे लगता है तुमने एक प्रोडक्शन बस गलती से लिख दिया। लेट मी टेल यू। अपने I2 पे जाना, तुलसी, ठीक है? फिलहाल अभी सिर्फ I2 पे देखना। I2 में तुम्हारा पहला प्रोडक्शन क्या है? S tends to N हम्म dot capital V N. फिर उसके बाद S tends to dot P पी capital कहाँ V. से आया? रुको 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 रुको। पहला प्रोडक्शन क्या है? N डॉट कैपिटल वी एन। तो डॉट किसके बाद है? कैपिटल वी के बाद है। तो वी के सारे प्रोडक्शन आएंगे ना, तो तुमने एस का प्रोडक्शन क्यों लिखा हुआ है? ओ ओके मैम, मेरे को समझ समझ आ गया। समझा? वापस हाँ बनाओ, वापस बनाओ। लेट मी चेक अक्षिता योर आंसर। मैम मैंने अभी नहीं भेजा है। हाँ हाँ, आपने नहीं भेजा, ओके। मैं व्हाट्सएप पर लॉग इन। चलो बनाओ, बट गुड ट्राई तुलसी। बनाने के बाद एक बार आंसर चेक करो एंड फिर भेजो। तुलसी याद रखो, डॉट के बाद जो सिंबल आएगा उसके प्रोडक्शन लिखने हैं। अगर वो प्रोडक्शन और प्रोडक्शन को देता है तो ऐसा नहीं कि सब में कॉपी करते जाना है कुछ भी प्रोडक्शन। आपके आई पाई भी गलत है। डॉट एन के बाद क्या है? एन तो कुछ देता ही नहीं है, तो आपने एस और वी कैसे लिख दिया है? मैम, उसमें सिर्फ फर्स्ट वाला ऐसे आएगा, डॉट एन वी एन वाला। पी प्रॉपरली एस, करो। उसके बाद पी वाला और वी वाला नहीं आएगा। हाँ, नहीं आएगा। गलती समझा ना अपना। यस मैम। चलो अक्षिता, आप अपना आंसर भेजो।
Are we done, guys? मैम कर रहा है। तुलसी, अक्षिता, क्या हुआ? आंसर नहीं आ रहा है क्या अभी तक? एक अटेम्प्ट का भी आंसर नहीं आया है। आर यू गेटिंग और नॉट? मैम भेज रही हूँ। हाँ, मैम ओके, मैंने भेजा है। लेट मी चेक योर आंसर, अक्षिता। आई टू पे एन डॉट वी एन है, तो डॉट किसके बाद में है? डॉट के बाद क्या है? कैपिटल वी। तो वी के प्रोडक्शन क्यों नहीं लिखे? वी टेंस टू डॉट वी। अक्षिता, देखो तुम लोग समझ नहीं रहे, या तो तुम लोग को पहला वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, बिकॉज ये इतना मुश्किल से वो स्टेट डायग्राम मैंने तुम्हें सिखाया है। अगर तुम स्टेट डायग्राम के सब प्रॉपरली कर लोगे, तुम्हारा शिफ्ट भी गलत होएगा, तुम्हारा रिड्यूस भी गलत होएगा। एक प्रोडक्शन नहीं लिखा है तो S3 जाएगा, अच्छे से प्रोडक्शन नहीं लिखा है तो रिड्यूस जाएगा। अक्षय, आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन, देखो तुमने क्या गलत किया हुआ है। क्या है ये? क्या बनाया ये आपने? आपने I0 पे लिखा, I0 पे सब आया, ठीक है। फिर आपने कैपिटल S लिखा है, कैपिटल S किया तो S टेंस टू S डॉट होएगा, करेक्ट है। अब डॉट किसके आगे? N के आगे, तो आपने N को रीड करना है, तो N को रीड किया है, तो N को रीड कर लोगे तो N डॉट वी एन आएगा। अब डॉट के आगे क्या है? V है। V से कौन सा प्रोडक्शन चालू होता है, अक्षिता? हाँ, वी टेंस टू वी डॉट V टेंस टू, स्मॉल वी डॉट तो ना ये वाला डॉट लिख, वी। डॉट बी। तो जब ये वाला कैपिटल वी नहीं पढ़ा है तो उसके आने वाले उसके उससे जो डिराइव होता है उसको भी नहीं पढ़ा है, तो वो भी लिखो, वी टेंस टू डॉट वी। फिर तुमने यहाँ पे क्या किया है? पी को रीड किया है, पी को रीड करोगे तो तुमने लिखा है पी डॉट वी वी। अब डॉट के बाद क्या है? आगे वी है, तो वी के प्रोडक्शन लिखो। क्यों नहीं लिखा है ये सब कुछ? करो इसको, वापस सॉल्व करो। गाइस जल्दी जल्दी करके दो, सो दैट वी कैन बाइंड अप फॉर 2 days। लेट मी चेक, अब किसने दिया है? अब अक्षता ने वापस दिया है, ठीक है। अक्षिता ने वापस दिया, ठीक है, लेट अस चेक। अक्षिता, उसको सॉल्व तो करो। I2 का जब स्मॉल वी रीड करोगे तो कहाँ पे जाएगा? वो क्यों नहीं बनाया तुमने? I3 का तुमने बनाया है। और देखो तुम्हारे I3 के प्रोडक्शन पे तुम्हारा कौन सा कैपिटल वी है, कौन सा स्मॉल वी है, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। प्रॉपरली लिखो, क्योंकि तुम प्रॉपर नहीं लिखोगे ना, तुम्हारा टेबल भी रॉन्ग होएगा, और मान लो ये टेबल गलत हुआ ना तो पूरा पार्सर गलत होएगा। बाकी सब कुछ सही है तुम्हारा। प्रॉपरली बना के मेरे को भेजो, कहाँ कहाँ पे कौन सा टेबल जा रहा है। तुम्हारा एक एरो मिस होएगा ना, तो तुम्हारा शिफ्ट का मूव्स गलत होएगा। तुम्हारा एक प्रोडक्शन गलत हुआ तो वो तुम्हारा रेड्यूस का मूव गलत होएगा, तो प्लीज अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस। लेट मी चेक तुलसी और आंसर। I0 किया, N1 गया, I0 करेक्ट है, I1 करेक्ट है तुम्हारा।
फिर तुमने स्मॉल एन रीड किया है तो ये हो जाएगा वी आई टू करेक्ट है तुम्हारा। इससे कैपिटल वी क्या था एन वी डॉट एन हो गया। आई फाइव तुम्हारा करेक्ट है और इस पे स्मॉल एन किया तो आई सिक्स हो जाएगा। गुड, आई टू आई फाइव आई सिक्स करेक्ट है तुम्हारा तुलसी। अब आई थ्री करोगे तो आई थ्री पे स्मॉल पी रीड करोगे, करेक्ट है, ये भी हो जाएगा। आई थ्री भी करेक्ट है तुम्हारा। आई टू से तुमने स्मॉल वी पढ़ा है, आई थ्री से भी स्मॉल वी पढ़ा है तो वो उधर जा रहा है आई फोर पे। गुड गुड, आई थ्री करेक्ट है, आई फोर करेक्ट है। फिर आई थ्री के बाद तुमने क्या पढ़ा है, कैपिटल वी पढ़ने की कोशिश की है तो आई सेवन पे चले गए। गुड, आई एट परफेक्ट तुलसी। आर वी क्लियर? तुलसी इधर तक क्लियर है? यस सारे मैम। एरोज पे आपने प्रॉपरली बनाया है। अक्षिता लेट मी शो यू तुलसी का आंसर, एक मिनट। लेट मी चेक, तुमने ही मैसेज किया क्या? नहीं, यू हैवंट मैसेज मी। ठीक है, देखो दिस इज हाउ यू शुड मेक, एकदम क्लियर। एकदम तुम पेंसिल से कर रहे हो ठीक है, बट योर आंसर शुड बी एज क्लियर एज हर्स। देखो हाउ ब्यूटीफुली शी हैव लाइक ड्रॉन इट। आई जीरो से कैपिटल एस गया तो किधर गया, कैपिटल एन टू गया, मैम स्मॉल बी करोगे तो किधर जाएगा? क्योंकि आपके एक एक प्रोडक्शन पे आपका शिफ्ट होएगा, रिड्यूस होएगा या तो एक्शन होएगा। समझा अक्षिता? समझा Yes, अक्षिता? ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, चलो अब तुम लोग क्या करोगे, टेबल बनाओ। 0 1 2 3 4 5 6, पहले गो टू लिखो, फिर एक्शन लिखो। पहले सब लोग गो टू का मेरे को भेजेंगे, फिर एक्शन का भेजेंगे, फिर उसमें शिफ्ट भेजेंगे, उसमें रिड्यूस भेजेंगे। चलो, और सबके आंसर्स अलग अलग आएंगे, क्यों? क्योंकि सबका स्टेट नंबर अलग अलग है। इसका ये आई वन है, इसका अक्षिता का ये आई फोर है, ये किसी का आई सिक्स है, तो सब लोग अपने अपने डायग्राम के हिसाब से टेबल भेजो। चलो, नेक्स्ट 5 मिनट्स में वी नीड टू लाइक वाइंड अप। ऊपर वाला टेबल देखो, उससे कंपेयर करो, उसके हिसाब से नीचे वाला टेबल बनाओ। तुलसी, टू ऑन कैपिटल वी तो नहीं लिखा है आपने सही से। टू ऑन कैपिटल वी आपने कुछ लिखा ही नहीं है, राइट? मैम वो 5 और 4 है, वो 2 में ही है। वो टू, एस वाला जो 1 है ना, वो ऊपर लिख दिया है इसलिए। नहीं नहीं नहीं, देखो तुमने 0 ऑन एस तो तुमने लिखा है 1, करेक्ट। फिर तुमने 1 ऑन वी, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। टू ऑन कैपिटल वी, टू ऑन, देखो यही डिफरेंस है। देखो मैं तुम्हें यही बताने की कोशिश कर रही थी। लेट मी शेयर योर डायग्राम। देखो, तुम देखोगे, अब तुम लोग बताओ मुझे, तुलसी बताओ, ये वाला वी और ये वाले वी में क्या डिफरेंस है? ये कैपिटल है बच्चा और ये स्मॉल वी है। देखो तुम्हें अपनी राइटिंग से ही तुम्हें ये पूरा आंसर गलत मिला है। तुमने टू ऑन कैपिटल वी क्या कर दिया है, 5 भी लिख दिया है, 4 भी लिख दिया है। ये तो छोटे वी पे काम कर रहा है, वो वाला कैपिटल वी पे काम कर रहा है। समझा? ओह यस मैम। समझा तुम्हारा मिस्टेक? जब मैं बोल रही हूँ कि हर एक चीज, चाहे वो कैपिटल हो या लोअर केस हो, मेक श्योर करो वो सही से लिखो। तुम लोग अभी टेबल गलत बना रहे हो। पूरा तुमने सही सॉल्व किया, तुमने लास्ट वाला एंट्री गलत लिखा है। तो यहाँ पे बताओ क्या एंट्री आएगा सिर्फ? वो 4 है, वो नहीं आएगा। फोर है, वो नहीं आएगा। वैसे ही गो फॉर योर थ्री स्टेट के लिए। थ्री पे अब क्या आएगा सिर्फ, और क्या नहीं आएगा? सिर्फ 7 ही आएगा, 4 नहीं आएगा। तो 5 और 7 आएगा बस। इसके लिए प्लीज गाइस देखो, कंपाइलर इज वन ऑफ द मोस्ट कोडिंग सब्जेक्ट। इसमें हर एक सम में क्या है, ये मेथोडोलॉजी उसके हिसाब से सॉल्व कर लो, ये मेथोडोलॉजी उसके हिसाब से सॉल्व करो। दिमाग ही नहीं लगाना है इसमें। बट अंडरस्टैंड वेयर द लोअर केस नीड्स टू बी यूज, वेयर द अपर केस नीड्स टू बी यूज। लोअर केस मतलब क्या, वो डिराइव नहीं हो सकता। अपर केस मतलब वो डिराइव हो सकता है। इसी के लिए यहाँ पे देखो ये सारा अपर केस में लिखा है, क्योंकि ये कुछ ना कुछ डिराइव कर रहा है। जो लोअर केस में लिखा है वो नहीं डिराइव कर रहा है। सो अंडरस्टैंड, ये कन्वेंशंस है, प्रोटोकॉल्स है, कि टर्मिनल को लिखा जाएगा बाय लोअर केस, नॉन टर्मिनल को लिखा जाएगा बाय अपर केस। चलो अपना ये मिस्टेक सही करो तुलसी, और आगे का डायग्राम भेजो। शिफ्ट और रिड्यूस भेजो अभी। लेट मी चेक अक्षिता योर्स। लेट मी चेक। अक्षिता योर आंसर, 0 ऑन कैपिटल एस जा रहा है सही। 0 ऑन
जीरो ऑन जीरो ऑन जीरो ऑन कैपिटल एस जा रहा है तुम्हारा इसमें, ठीक है। और फिर उसके बाद ए गाइस, तुलसी तुम्हारा भी जीरो पे कैपिटल जीरो पे कैपिटल वी कहाँ पे है तुम लोगों का, कि तुमने लोग ने जीरो ऑन वी 4 लिखा हुआ है? वो कैपिटल वी है कि स्मॉल वी है? तुम्हारा भी जीरो स्मॉल ऑन वी रॉन्ग स्मॉल है, भी है। इसका भी यही डिफरेंस है अगर तुम लोग नहीं सुनोगे तो, कि क्या लोअर केस है क्या अपर केस है। जीरो ऑन वी दोनों का गलत है। खुद कंफ्यूज हो रहे हो, मेरे को भी कंफ्यूज कर रहे हो बाय नॉट राइटिंग इट वेरी क्लियरली। और ये वन ऑन वी होता है एक्सेप्ट, कि वन ऑन डॉलर होता है एक्सेप्ट? हाँ, वन ऑन डॉलर एक्सेप्ट होना चाहिए। डॉलर ऊपर वाला डायग्राम बनाया है, ऊपर वाला टेबल बनाया है, तो फिर क्यों गलत हो रहा है? टू ऑन कैपिटल वी 5 है और थ्री ऑन कैपिटल वी 6 है। ठीक है, चलो गो टू कंप्लीट, गो टू करो, जो जो गलत है उसको निकालो, फिर उसके बाद अब एक्शन वाला पार्ट फिल करो। चलो गाइस, सॉल्व करो शिफ्ट और रिड्यूस मूव्स। लेट मी चेक योर आंसर तुलसी, ठीक है। लेट मी चेक। ठीक है, तुम्हारा अभी पूरा टेबल आ गया है मेरे को। अब अक्षिता गिव मी योर ऑल्सो लाइक फुल टेबल, ठीक है। लेट मी चेक। जीरो ऑन कैपिटल एस तुम्हारा जा रहा है वन विच इज करेक्ट। वन ऑन डॉलर इज करेक्ट। टू ऑन वी करेक्ट है तुम्हारा, और थ्री ऑन वी करेक्ट है तुम्हारा। तो तुम्हारा गो टू और वन डॉलर तो करेक्ट है तुलसी। नाउ लेट अस गो फॉर ऑल द शिफ्ट मूव्स। तो शिफ्ट मूव्स में अगर जाओगे तो पहले तो तुमने ऊपर सारे टर्मिनल्स लिखे, विच इज गुड, करेक्ट। जीरो ऑन स्मॉल एन जा रहा है तुम्हारा एस टू पे, करेक्ट। जीरो ऑन स्मॉल बी जा रहा है तुम्हारा एस फोर पे। जीरो ऑन स्मॉल थ्री जा रहा है तुम्हारा एस थ्री पे, करेक्ट। स्टेट नंबर जीरो करेक्ट है। स्टेट नंबर वन करेक्ट है। स्टेट नंबर टू जा रहा है उधर, करेक्ट है। स्टेट नंबर थ्री, स्टेट नंबर थ्री पे तुमने ये तो लिख दिया है। स्टेट नंबर थ्री में तुमने एरो नहीं बनाया, बस यहाँ पे तुमने ये किया, डायग्राम पे तुमने एरो नहीं बनाया, लेकिन तुमने थ्री ऑन वी लिखा है। और स्टेट नंबर थ्री पे तुलसी स्मॉल वी का एरो बनाओ पहले, ठीक है। स्टेट नंबर फोर बाद में देखा जाएगा, पहले मैं देखूँ स्टेट नंबर फोर कहाँ पे। स्टेट नंबर फोर पे कुछ भी नहीं है। स्टेट नंबर फाइव पे शिफ्ट मूव्स है, ठीक है। शिफ्ट मूव्स कौन से पे जा रहा है? वो जा रहा है स्टेट नंबर फाइव पे, ऑन स्मॉल एन जा रहा है सिक्स पे, गुड। स्टेट नंबर सिक्स पे कुछ नहीं है। स्टेट नंबर सेवन पे तुम्हारे शिफ्ट मूव्स है, कहाँ पे जा रहा है तुम? एट पे जा रहा है, गुड। एंड शिफ्ट नंबर एट पे कुछ नहीं है, ठीक है, शिफ्ट मूव्स नहीं है। नाउ लेट अस सी ऑल द रिड्यूस मूव्स, कहाँ कहाँ पे फाइनली सब खत्म हो रहा है। तो आई वन है, ठीक है, आई फोर है, तो आई फोर को तुमने लिखा होगा जीरो वन टू थ्री, तो आई फोर तुम्हारा करेक्ट है। नेक्स्ट लिखा तुमने आई सिक्स, आई सिक्स में क्या है तुम्हारा? आई सिक्स पे तुम्हारा है आर वन, करेक्ट है। एंड ये हो गया, ये हो गया आई एट। आई एट, आई एट क्या है? पीवीपी तुम्हारा आर टू है, गुड। क्या ये इसमें कोई भी सेल पे मल्टीपल एंट्रीज है तुलसी? कोई नो भी मैम। सेल पे तो ये कौन सा पार्सर होएगा? एल आर जीरो LR पार्सिबल 0। होएगा। अभी गुड, तो लिखो नेक्स्ट नाइन नीचे लिख देना, सिंस दिस टेबल डजंट कंटेन एनी मल्टीपल एंट्रीज देयरफॉर इट इज एल आर जीरो पार्सिबल। लेट मी चेक अक्षिता योर आंसर। अब मैं अक्षिता के डायग्राम पे जाती हूँ, क्योंकि सबके डायग्राम के हिसाब से टेबल बदलते जाएगा। जो उसका आई फोर है, हो सकता है इसका आई सिक्स हो। किसने क्या आई लिखा हुआ है नाम, तो वो मैटर करता है। लेट मी चेक। चलो, ओके, जीरो।
अक्षिता लेटर सी और 0 ऑन S करेक्ट है बच्चा। ठीक है, 1 ऑन डॉलर करेक्ट है। तुम्हारा 2 ऑन 5 करेक्ट है। एंड तुम्हारा 3 ऑन कैपिटल V करेक्ट है, 5 and 6 गुड। नाउ लेट अस गो फॉर ऑल द शिफ्ट मूव्स। शिफ्ट मूव्स में जाऊंगी तो 0 से स्मॉल एन, स्मॉल एन निकलता है, वो जाता है तुम्हारा 2 पे। फिर उसके बाद तुम्हारा स्मॉल P निकलता है, जो जा रहा है तुम्हारा I3 पे, गुड। एंड स्मॉल V निकलता है जो तुम्हारा जाता है S4 पे, गुड। 1 करेक्ट है। 2 पे देखते हैं, 2 क्या है, 2 पे स्मॉल V करोगे तो किधर जाएगा, I4 पे। वो एरो तुमने भी नहीं बनाया है। आई डोंट नो वाई बोथ ऑफ यू आर डूइंग सेम मिस्टेक। 3 ऑन V, ये भी जा रहा है 4 पे, करेक्ट। I4 पे देखूं मैं, I4 पे कोई मूव्स नहीं है, ठीक है। I5 पे अगर देखूंगी तो एक मूव है वो N के लिए, वो जाएगा तुम्हारा 7 पे, ठीक है। I5 से जाएगा तुम्हारा 7 पे। अ, एक मिनट, एन एन से गया 7 पे, ठीक है। I6 क्या है तुम्हारा, ये है। I6 से स्मॉल P पढ़ते हैं तो ये तुम्हारा जा रहा है 8 पे, तो करेक्ट है। बस, अब फाइनल कहाँ कहाँ पे खत्म हो रहा है, I1 पे खत्म हो रहा है, बट उसका नहीं बनाते, I7 है। तो I7 तुम्हारा कौन सा प्रोडक्शन है, 1 प्रोडक्शन है, तो R1 होएगा, गुड। फिर नेक्स्ट तुम्हारा क्या है, I8 क्या खत्म हो रहा है सब कुछ, तो PVP कौन सा प्रोडक्शन है, 2, करेक्ट। और I4 कौन सा प्रोडक्शन है तुम्हारा, V वाला, तो ये हो जाएगा R3। R भी करेक्ट, सबको समझा। यहाँ पे अक्षिता तुम्हारे टेबल पे भी मल्टीपल एंट्रीज नहीं है, तो ये कौन सा होगा, LR0 पार्सेबल होगा। आर वी क्लियर? Yes, ma'am. यस ठीक है, मैम। ठीक है। अब यही टेबल को वापस एक बार कॉपी करना, सब कुछ लिखना एक्सेप्ट रेड्यूस मूव, सब कुछ लिखना एक्सेप्ट रेड्यूस मूव्स। यही टेबल पे सब कुछ लिखना एक्सेप्ट रेड्यूस मूव। लेट मी नो वंस यू आर डन, ओके। सबने लिखा, सबने लिखा, यस मैम। ठीक है। अब सब लोग क्या कर रहे हो, सब लोग नीचे लिखो, निकालो फर्स्ट एंड फॉलो निकालो, ये ग्रामर का एस का निकालो। ऑगमेंटेड ग्रामर नहीं कंसीडर करना है, जो नॉर्मल क्वेश्चन दिया था उसका फर्स्ट एंड फॉलो निकालो। ऑगमेंटेड ग्रामर एक स्टेप है जो हमने ऐड किया था इसको सॉल्व करने के लिए। तुम तुम फर्स्ट एंड फॉलो हमेशा उस क्वेश्चन का निकालोगे जो आपको सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है। और सब लोग मुझे इसका आंसर भेजो, व्हाट इज द फर्स्ट एंड फॉलो फॉर दिस। अभी डन?
लेट मी चेक तुलसी योर आंसर। फर्स्ट ऑफ एस बच्चा आपका सही है, फर्स्ट ऑफ बी भी आपका बच्चा सही है, फॉलो ऑफ एस आपका सही है, एंड फॉलो ऑफ वी भी आपका परफेक्ट है। गुड। व्हाट अबाउट अक्षिता? तुलसी वापस टेबल बनाया जिसमें सब कुछ आपने लिखा है, शिफ्ट लिखा है, एक्शन लिखा है, सिर्फ रेड्यूस वाला एंट्रीज नहीं लिखना है। यस क्या वो मैम। कर लिया है? बना। हाँ। ठीक है, यहाँ पे अगर देखोगे तुमने फर्स्ट ऑफ एस तुमने सही लिखा है, फॉलो ऑफ एस फॉलो ऑफ वी करेक्ट है। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है। जो भी तुमने टेबल पढ़ा है, राइट, जो भी हमने अभी टेबल किया, ठीक है, उसमें उसमें सिर्फ रेड्यूस्ड मूव्स, अभी तक तुम क्या कर रहे थे, रेड्यूस मूव हर एक टर्मिनल के अंदर बाय डिफॉल्ट लिख रहे थे। तुम लिख रहे थे हर एक टर्मिनल के अंदर लिख रहे थे, मतलब जैसे यहाँ पे लेट मी एक मिनट शेयर, एक और बार रुको। फॉर एग्जाम्पल ये वाला एक तुलसी का एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ, मे बी अगर अक्षिता को चलेगा तो अक्षिता का भी आई कैन टेक दैट एग्जाम्पल। यहाँ पे तुलसी, यहाँ पे तुम अगर देखोगे या अक्षिता तुम भी देखोगे तो तुम्हारा 4, 6 और 8 में रेड्यूस मूव्स तुम हर एक टर्मिनल के अंदर लिख रहे थे, राइट, एन के अंदर भी लिख रहे थे, वी के अंदर भी लिख रहे थे, पी के अंदर भी लिख रहे थे, डॉलर के अंदर भी लिख रहे थे। एम आई राइट? यस मैम। एम आई राइट? इक्वेशन नंबर 4 कौन सा होएगा तुम लोगों का? या या अगर तुम देखोगे स्टेट नंबर 4 पे जाते हैं, तो स्टेट नंबर 4 कौन सा था तुम्हारा? ये वाला था, राइट, वी टेंस टू वी डॉट, करेक्ट है तुलसी? Yes. यस अब मैम। अब फॉलो वी क्या है भाई? फॉलो वी क्या बनता है तुम्हारा? And फॉलो P. एन और पी। Small. तो अब ये रेड्यूस मूव को तुम सबके अंदर नहीं लिखोगे, सिर्फ किस के अंदर लिखोगे, एन के अंदर लिखोगे और पी के अंदर लिखोगे। आर वी गेटिंग? आर वी गेटिंग? Yes. तो अब यस आर मैम। थ्री चार जगह पे नहीं आएगा, सिर्फ दो जगह पे आएगा, लिख दो, एन के अंदर और पी के अंदर तुम्हारे नए टेबल पे। अक्षिता तुम्हें समझा, तुम्हारे लिए भी सिमिलरली जाएगा। Yes. Ma'am. ठीक है, नाउ लेट अस गो। अब नेक्स्ट इसमें तुमने क्या देखा था, तुमने यहाँ पे देखा था I6। I6 किसके लिए है? एस के लिए है। तो फॉलो ऑफ एस क्या है भाई तुम्हारा? फॉलो ऑफ एस क्या है तुम्हारा? डॉलर है। तो अब यस मैम। I6 इधर 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 नहीं जाके किधर जाएगा? 6 ऑन डॉलर के अंदर जाएगा, R1। आर वी क्लियर? Yes. Ma'am. यस मैम। तुलसी, यस मैम। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है तुम्हारा भाई? ये वाला टेबल I8। I8 में भी क्या है? एस है, तो एस किसके अंदर जाएगा? डॉलर के अंदर जाएगा। तो ये भी क्या होगा? R2 अब किसके अंदर जाएगा? डॉलर के अंदर। आर वी क्लियर? यस आर मैम। वी क्लियर? Yes. तो Ma'am. पहले कितने रेड्यूस मूव्स थे? 12 रेड्यूस मूव थे। अब कितने रेड्यूस मूव्स आ रहे हैं? सिर्फ 4 आ रहे हैं। समझा? Yes. Ma'am. यस मैम। यही अगर तुम फॉलो कर देते हो तो ये तुम्हारा क्या बन जाता है? SLR1 पार्सर। सब कुछ सेम है। ऑगमेंटेड ग्रामर निकालना है, LR0 आइटम कंस्ट्रक्ट करना है, टेबल कंस्ट्रक्ट करना है, एक्शन मूव सेम रहेगा, शिफ्ट मूव्स भी सेम रहेगा। जो डिफरेंस आएगा वो किस में आएगा? रेड्यूस मूव में। तो पहले वाले में क्या कर देते तुम? रेड्यूस एंट्री सारे टर्मिनल्स के अंदर लिखोगे। दूसरे वाले में क्या करोगे तुम? रेड्यूस मूव्स किसके अंदर लिखोगे? सिर्फ फॉलो के अंदर लिखोगे। समझा सबको? समझा सबको? Yes. यस Ma'am. मैम। अब वापस देखोगे ये सेल में मल्टीपल एंट्रीज नहीं है, मतलब ये भी क्या होएगा? SLR1 पार्सिबल होगा। आर वी क्लियर? Yes. Ma'am. ठीक है, यस तो मैम। आज हमने दो टाइप के पार्सर पढ़े, LR0 SLR1। समझा ना? देखा देखा SLR1 में कितना 90% LR0 का कंट्रीब्यूशन है, सिर्फ टेबल बदल रहा है। सिमिलरली
कल हम लोग और सम सॉल्व करेंगे, LR0 के भी हम सॉल्व करेंगे, SLR1 कल पहला 1-1.5 घंटा वी विल सॉल्व 5 to 6 सम्स मोर। फिर उसके बाद हम जाएंगे LLR1 पढ़ लिया तो CLR1 भी पढ़ हो जाएगा। तो दैट इज हाउ दिस चैप्टर इज लाइक वेरी क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। तो सैटरडे तक तुम्हारा सबसे बड़ा चैप्टर कंपाइलर्स का हो जाएगा। समझा आज LR0 क्या है, SLR1 क्या है? आर बी Yes, क्लियर? ma'am. Yes, यस ma'am. ठीक मैम। है, इसको रिवीजन करके आना। कल सुबह मोस्टली हमारा लेक्चर या तो 7:30 बजे रहेगा या तो 8 रहेगा। ठीक है, टुमारो वी विल मीट इन द मॉर्निंग, बट इसको रिवाइज करके आना क्योंकि कल पूरा लेक्चर मोस्टली डेडिकेटेड रहेगा टुवर्ड्स द सम। ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है, यस मैम। चलेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच गाइस। Good night, ma'am. गुड नाइट।